it from the back. I said that to smooth running, easy legislation and administration. At that time, what is the most important? Legislation is there, but to some extent. Administration is there, but to some extent. इस समय portfolio system was highly centralized on finance. I said that फाइनेंस में जितने भी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, जहाँ पे भी फाइनेंस हो रहा है, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड रेवेन्यू, उसको अच्छे से डिजाइन किया जाए, सो दैट वी कैन बी एबल टू गेट नॉट इज इन गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड वी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द इंडिया. सो द यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? वी हैव टू डिवाइड मिस कंप्लीटली. आई सेड दैट ऑर्गेनाइज्ड होल फाइनेंशियल सिस्टम इनटू वन एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इट इज हेडेड बाय द वाइसरॉय इटसेल्फ कंप्लीट. सो पोर्टफोलियो सिस्टम में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन को इजी रन करने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था. द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज द व्हाट इज इन फाइनेंशियल सिस्टम. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन पोर्टफोलियो सिस्टम में? आई सेड इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू कैबिनेट रन ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर इजी लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और हमेशा पोर्टफोलियो में हमेशा एक इंपॉर्टेंस रहता है हाउ टू मैनेज द फाइनेंस. We have to divide into the departments so that we can have to what is in a better financial system. Always there is an important. If you are giving every department different, I said that assignment, then but for what? Making better finance. I said that the foundation for the future cabinet form of the government in India. तो 1861 क्या था? What is that 1861? 1861 पहले बोला कि हमें क्या करना है? We have to make a smooth transaction of business with India. And इसके लिए वाइसरॉय क्या किया? He has done what? Made an what? Portfolio system in their cabinet. Understood? And I said that for the better, easy, what is an administration legislation by making the best financial system. Understood? And then foundation for the future cabinet form of government in India. Now, a fifth member was added to the Viceroy's Executive Council, and this cabinet has now 6 ordinary members who each took charge of separate department in the Calcutta's government: home, revenue, military, law, finance and public work. I said that सभी में हमें जितने भी 6 सिस्टम जो आ गए सब में डिवाइड किया गया, but I said that last one public work has been added later on, but there is a 6th one is there. Public work was not existing at that time. Understood? So यहाँ पर क्या क्या था? I said that home affairs and then revenue, military, law, finance and all. सभी में हमें अपने को बेटर फाइनेंशियल सिस्टम, यदि हमें पोर्टफोलियो सिस्टम देखना है तो बेटर फाइनेंशियल सिस्टम इन ऑल. आई सेड दिस डिफरेंट, आई सेड डिपार्टमेंट सेपरेट. द 6th ordinary member is commander in chief used to attend executive council meeting on extraordinary member. ये पहले से भी थे. The governor general council was enlarged by adding 6 to 12. तो 6 तो थे और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अब बढ़ाने के लिए कितने चाहिए थे? इन सब के लिए 6 members. How many members? So total how much it is? These members would be nominated by the Viceroy for a term of 2 years, but not less than half of them would be non-official. What is the meaning of non-official and official member? Yes? And non-official? Yes? Officials means government servant, and non-officials means informal, means they are not government servant. Yes? Then what is ex-officio member? Ex-officio member means, yeah? Means already you are in the government services and you have appointed for the another services. You have given the another higher levels of
what is on the basis of your performance. Understood? That you are already in the government office, and again another additional what is charge has been given to you. Understood? So official members, non-official members, and then ex-official member it the word which will come. So I said that यहाँ पर हमने क्या बोला? The members should be nominated by the viceroy for a term of 2 years. जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो एक्स्ट्रा जो मेंबर्स आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बाहर 6 और ऐड किए गए हैं. It will be only for how many terms? It will be for 2 years term, and it is but not less than half of them would be non-auspicious. Means half of them would be what is but not less than half of them, but not less than, मतलब उसमें नॉन ऑफिशियल्स की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी. Understood? It means it will be nominated. It means it will be more of what is nominated kind of it. Understood it? So I said that non-official members will be more on 2 years में, and it will be on the discretion of what? Governor General. It will be on the wish of what? Governor General, that is the Viceroy of the British India. Understood? तो हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बात किया. हमने कौन कौन सी चीज को लेकर बात किया? 1861 ये क्या देख रहा है? बहुत दूर की चीज देखने की कोशिश कर रहा है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन अच्छे से करना चाह रहा है जिससे कि 1857 जैसा ना हो जाए. यस, पोर्टफोलियो सिस्टम ही इसने डाला. सेकंड, व्हाट ही हैज डन? यस, एंड देन ही हैज इंक्रीज द मेंबर्स 6 और 6 के साथ 6 मोर फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अंडरस्टूड? And this department, these members which are going to be elected, going to be nominated, they are most of what is non-officials. These are more, and their term will be what is 2 years. Understood? Why they are? Why? Means I said that portfolio system आज के डेट में आप लोग क्या देखते हैं कि you are giving an assignment for the every department, but finally आप लोग क्या समझते हैं कि make the financial system better. आपको फाइनेंस पोर्टफोलियो में हमेशा रहता है कि आपको फाइनेंस को बेस्ट बनाना है. आप assign the duty to every department, but maintain the best finance. तो फाइनेंस सिस्टम को ज्यादा जोर देने की बात की गई. एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, आपको ये काम करना है. अब पोर्टफोलियो सिस्टम दे दिया गया, दैट सो दैट मेक द बेस्ट फाइनेंस. सो फाइनेंस सिस्टम को उन्होंने जोड़ दिया, गेटिंग टुगेदर ऑल द फाइनेंस. अंडरस्टूड? फॉर मेकिंग, आज भी बोला जाता है, कहीं भी बोला जाता है कि यदि हमारे पास पैसा होगा तो वी कैन मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, और पैसा नहीं होगा तो वी कांट मैनेज. अंडरस्टूड? And this is always a point of view for the every governor general. जो best governor general रहे, they are what is talking about. They can rule over India if they have a best finance. Understood? और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट भी करना है. There is a recruitment. अब यहाँ पे प्रॉब्लम में चल रहा है कि they should take Indians into the recruitment or not, at higher officials or not. If there should be any Indian members, जो कि बात में करके गए थे कौन? Lord Dalhousie has said that Indian members should be there. Yes, and then Indian members should be there or not. तो कुछ लोगों ने, जो कि 1857 के बाद था, लोगों ने बोला कि there should be a what? Indian member. Why it should be the Indian member? The reason behind that we can understand the social, economical, and political point of view of the Indian members. If it will not be what is included with them, then we will be isolated. And then there will be again a chance of what? Clear? इंडियंस को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे. क्या बोलते थे बोलो? स्वाइन एंड निगर बोलते थे. स्वाइन एंड निगर मतलब सुअर बोलते थे, काला भी बोलते थे. दैट दे आर using for the Indians. It is also one of the social aspect. That is one of the cause. जब आप पढ़ते हैं ना, तो that is several kind of thing. So I said that ये term समझ में आ गया how much it is. Thereafter I am talking about the Viceroy enjoyed veto power. और ये आप हमेशा देखोगे कि Viceroy is the most important portion, centralized power. Veto power, and in the case of emergency authorized to issue ordinances which is were to be valid for 6 months.
1861 में 6 जुड़ा हुआ है, 6 में आपने 6 मेंबर्स को एक्स्ट्रा ऐड होते हुए देखा, और 6 में आपने देखा कि उनके जो वीटो पावर है, जो ऑर्डिनेंस दे देंगे, वो कितने दिन के लिए चलेगा? आई सेड दैट कितने दिन के लिए चलेगा? 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। 6 मंथ के लिए वैलिड, उसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। उसके बाद आप इतना ही मैं बताऊंगा, ज्यादा अभी एंट्री नहीं लूंगा। अंडरस्टूड इट? 6 मंथ समझ में आ गया? तो वीटो पावर रहेगा उनके पास, और उनके पास क्या रहेगा? ऑल्सो ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस समझते होंगे ना? इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी इन्हीं के हाथ में। इन केस ऑफ इमरजेंसी देन दे कैन व्हाट इज व्हाट इशू एन ऑर्डिनेंस एंड देन दे कैन बी वैलिड फॉर अप टू 6 मंथ। तब तक तो इधर उधर तख्ता ही पलट दिया जाता है। आई सेड दैट नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? 6 मेंबर हैज बीन एडेड, पोर्टफोलियो सिस्टम हैज बीन इंक्रीज्ड, एंड 6 हमने बोला कि उनका क्या हो गया? 6 के लिए अगर आपने देखा, यस, ऑर्डिनेंस पावर विल बी वैलिड फॉर दिस एक्ट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज व्हिच वर टेकन बाय द चार्टर एक्ट 1833। 1833 के द्वारा उनको टेकन बैक एंड इट इज मेड सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेशन। The Legislative Council at Kolkata was given extensive authority to pass law for British India. Legislative Council at Kolkata was given extensive authority to pass law for British India as a whole, while the Legislative Council at Bombay and Madras were given the power to make laws for the peace and governance. तो दोनों में यदि हमने सबको वापस पावर दिया, तो सबसे ज्यादा पावर किसको दिया? बंगाल को। एंड मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को क्या दिया? ओनली यस, मेंटेनिंग पीस एंड गवर्नेंस। वही लॉ बनाओगे आप, क्योंकि वहां के लोकल अथॉरिटी के लिए, जो भी लोकल पीपल के लिए जो बनाए, सो दैट यू कैन मेंटेन द पीस एंड गवर्नेंस बेस्ड रहे। इससे ऊपर कोई और दूसरे लॉ नहीं बनाएंगे। एंड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज एंड विद द असेंट ऑफ द वायसराय फॉर वैलिडिटी। तो कहीं भी रहे, हमेशा 1935 तक देखोगे सब कुछ इट विल बी अंडर द व्हाट? वायसराय। असेंट मिलना चाहिए वायसराय का, अदरवाइज इट इज। तो इसमें इतना सारे लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं फील होती। वायसराय से सब कुछ पूछना है, तो ये कानून क्यों बढ़ाते जा रहे हो? आई सेड दैट टू द असेंट ऑफ द वायसराय फॉर वैलिडिटी। The Viceroy was given the power to create new provinces for legislative purposes and appoint lieutenant governors for the same. मतलब आप न्यू प्रोविंसेस बनाओ और उसके लिए गवर्नर्स। 1853 में क्या हमने देखा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यही पावर था। यस और नॉट? 1853 व्हाट वी हैव सीन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैज द सेम पावर दैट यू कैन क्रिएट न्यू प्रोविंसेस एंड देन यू हैव नॉट व्हाट इज द राइट टू मेक, यस टेल मी, राइट टू मेक लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फॉर दोज ईच प्रोविंसेस। और बाद में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पंजाब, आई सेड दैट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट एंड पंजाब, I said that we have created provinces into it. तो 1868-62 में हमने बंगाल को हमने क्या दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर। एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस दैट इज इन यूपी एंड ऑल, पंजाब यूपी के आसपास का रीजन सारा हमने किसको दिया? इन 1886 एंड 1897 में इट इज फॉर पंजाब प्रोविंसेस। अंडरस्टूड? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पंजाब कब बना? यस टेल मी, एज एन प्रोविंस 1897 with the lieutenant governor, and with the lieutenant governor northwest province in 1886 and 1862 it is for the yes Bengal with the lieutenant governor। क्योंकि 1853 में ये बोला गया था कि वहां पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, लेकिन हुआ नहीं था। 1858 आ गया और 1858 में सारा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जाना था, तो देयर वाज नॉट टू मच लॉ हैज बीन मेड। थोड़ा सा टाइम वेट किया गया और 1861 में वो लाया गया। क्या लाया गया? This, understood it? And then Secretary of the State for India at the time of the act was Conte Sir Charles Wood, and he was the last member of what is it? Court of the head member of Board of Control. Understood? तो सिंपल सी चीजें, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं बदलाव गया, सब कुछ वही रहा। थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम को हल्का सा बदलाव किया गया, so that they can run the transaction of business smoothly. And then what they did first in the 1861? Just tell me. First portfolio system, the number extra 6 बना दिए गए, and then total 6 और बढ़ा दिया गया। तो total 12 members in the executive council, but they are itself legislation कर रहे हैं। And it has been said that
कौन कौन से पोर्टफोलियो सिस्टम में रहेगा? यस टेल मी. होम, रेवेन्यू, पोस्ट, मिलिट्री एंड पब्लिक वर्क्स को बाद में ऐड किया गया इन 1874. अंडरस्टूड? तो इनको दिया गया और इनके टर्म कितने दिन के लिए डाले गए? 2 years के लिए. एंड इट इज इन नॉमिनेटेड एंड मोस्ट ऑफ द नॉमिनेटेड आर मोर देन हाफ. इट इज व्हाट? मोर देन हाफ, नॉट लेस देन हाफ. का मतलब क्या है? मोर देन हाफ. सो इट बी व्हाट? नॉन ऑफिशियल्स. उसके बाद हमने बात करा, इट इज सेम. हमने बोला कि प्रोविंसेस को हम लोग क्या दे देंगे? यस टेल मी. विल गिव द चांस टू मेक देयर power, restore their power which is earlier in the 1833, 1861. And वो they started making their power. ध्यान से केवल correlation करना है, हमें केवल ये याद रखना है ये कहानी के साथ साथ it is of the 1861. तो 6 जोड़ कर लिया. अब उनके पावर दे दिए, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव पावर किस प्रोविंस को मिला? Which provinces has got the extensive power? Bengal. But Madras and Bombay has got the only power of making the law only for peace and governance. लेकिन ये भी बोला गया इट विल बी डन ऑन द असेंट ऑफ वाइसरॉय. अंडरस्टूड? फिर 6 के लिए क्या बोलेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? आई सेड दैट 6 के लिए हमने बोला दे कैन मेक एन ऑर्डिनेंस. वाइसरॉय कैन मेक एन एंड इट विल मेंटेन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months. एंड द वाइसरॉय विल हैव द वीटो पावर इन देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल. जब वीटो पावर है तो कोई कानून के बगैर बन ही नहीं सकता. अंडरस्टूड? 1892 already we have crossed how many years? 30.